So welcome you all. Welcome to my channel Study Ka Enzyme, and today I am back again with another chapter of class 12 biology, which is molecular basis of inheritance, which is the next chapter in continuation with principles of inheritance. Right? So let's get started. Okay. So what is genetics? We have discussed about this in the previous chapter also. Genetics is a branch of science where we discuss about the transmission of traits, transmission of characters from one generation to other. So we call that to be genetics. And what are the key elements in genetics? What are the genetic materials? Usually it is RNA, DNA, and it is RNA for some viruses also, and proteins. So these are the genetic materials which we will be studying. DNA as the genetic material. So before we begin with anything else, let us dive into the most fascinating molecule of the molecular basis of inheritance of genetics, which you always have been flaunting about, DNA. So DNA is deoxyribonucleic acid. ये टर्म पहले दी किसने थी? सबसे पहले it was identified as a negatively charged or acidic chemical entity by Frederick Michaux. So this can be asked, and experimental proof that DNA is the genetic material were given by MacLeod, McCarthy, and Avery. So these three names we will be discussing ahead also. Okay, now let us understand the structure of this DNA. This DNA is a double helical structure which is like two ladder like structure. आपने देखी होंगी ऐसे wooden ladder होती है जिसमें दो parallel bamboos होते हैं और बीच में cross bars होते हैं. Same ways we have DNA structure which has टू एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स, एक नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है और एक स्ट्रैंड ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है, और बीच में क्रॉस बार्स जो होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं between the nitrogenous space. So now we have understood this double helical structure. अब ये जो ladder आपको parallel दिख रहा है ये twist हो जाता है, ठीक है? It twists like this. तो ये structure कैसा बन गया? Double helical structure, right? So this is a double helical structure which is made up of, जिसका जो backbone होता है that's made up of sugar and phosphate groups. ठीक है? अगर मैं डीएनए की बैकबोन बनाने शुरू करूं, सो क्या होगा? यहाँ पर शुगर, यहाँ फॉस्फेट, यहाँ शुगर, यहाँ फॉस्फेट, यहाँ फॉस्फेट, 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 और अंदर की तरफ क्या होगा? शुगर, शुगर मॉलिक्यूल्स, डीऑक्सीराइबोज शुगर. ओके, तो यहाँ पर शुगर मॉलिक्यूल्स होंगे और ये बन गया इसका बैकबोन, राइट? पर इन दोनों के बीच में यहाँ नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? इफ वी लुक एट इट केयरफुली, यहाँ पर भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा, इधर भी एक नाइट्रोजनस बेस होगा. अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, जैसे मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड. अब ये पॉलीमर्स क्या मतलब? जैसे कोई भी नेकलेस है, पर्ल का नेकलेस, तो वो किससे मिलके बना होता है? बहुत सारे पर्ल से मिलके बना होता है, राइट? सो इट इज मेड अप ऑफ मेनी पर्ल्स. ऐसे ही प्रोटीन एक पॉलीमर है विच इज मेड अप ऑफ मेनी अमाइनो एसिड्स, ठीक है? नाउ इफ आई टॉक ऑफ दिस डीएनए मॉलिक्यूल, दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज अगेन लाइक नेकलेस, इज अ पॉलीमर जो किस चीज से मिलके बना होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. तो ये क्या है? DNTPs, जिनको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स. और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? These deoxyribonucleotides are the monomer units which are made up of three components. एक है sugar. Now as we continued in the previous slide, let's look at the deoxyribonucleotide structure. तो ये क्या है? एक राइबोस शुगर है जिसके ऊपर यहाँ यहाँ पर एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है और अंदर की तरफ यहाँ पर अटैच्ड होता है नाइट्रोजनस बेस, ठीक है? इसके सामने यहाँ पर ये अटैच्ड होगा दूसरे शुगर मॉलिक्यूल से, ये इसको कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और इसके बाद यहाँ से अटैच्ड होगा एक और फॉस्फेट ग्रुप,
और अंदर की तरफ यहाँ पर शुगर होगी, अगेन द सेम थिंग, यहाँ पर होगा एक नाइट्रोजनस बेस which can be purine and pyrimidine. यहाँ पर again we will have a sugar molecule. So this is about one strand, right? तो ये 3 to 5 डैश है, ये 5 डैश पोलैरिटी होती है और ये 3 डैश। इसको हम ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टिप होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, दिस इज 5 डैश एंड, तो ये 5 डैश एंड हो गया। और यहाँ नीचे वाली साइड ये होता है 3 डैश एंड, राइट? तो ये 3 डैश का कनेक्शन 5 डैश से होता है, 3 डैश नीचे की तरफ है तो इसकी पोलैरिटी ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसके सामने वाली एंटी पैरेलल स्ट्रैंड को अगर आप देखोगे, सो इट विल बी लाइक इनवर्टेड, ठीक है, पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। ये अब इसके यहाँ पर क्या अटैच्ड होगा? फॉस्फेट ग्रुप, राइट? अंदर की तरफ क्या अटैच्ड होगा? जैसे यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस था, यहाँ पर भी नाइट्रोजनस बेस होगा। पर आपको पता है, हमें शारगाफ रूल ने बताया था कि ये जो नाइट्रोजनस बेस होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अगर इधर प्यूरीन है तो यहाँ पायरिमिडीन होगा। ओके, तो ये NB नाइट्रोजनस बेस, अगेन अगर हम इस पे नेक्स्ट पे आते हैं हम, तो इस पे अटैच्ड होगा एक फॉस्फेट ग्रुप, अगेन ठीक है। यहाँ फॉस्फेट के साथ अटैच्ड होगा दूसरा शुगर मॉलिक्यूल, जिस पे अंदर की तरफ अटैच्ड होगा NB नाइट्रोजनस बेस, अगेन फॉस्फेट हियर, अगेन नाइट्रोजनस बेस पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और इसमें भी अंदर की तरफ क्या होगा? NB नाइट्रोजनस बेस। तो ये आप देख रहे हो इसकी पोलैरिटी नीचे की तरफ है, ठीक है। कैन यू सी दिस मूविंग डाउन? क्योंकि यहाँ 3 डैश एंड है और यहाँ 5 डैश एंड है, तो ये स्ट्रैंड्स हो गई एंटी पैरेलल। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको देख रहा है को मिल रहा है NB, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस, जिनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब क्या है? प्यूरीन और पायरिमिडीन। तो अगर एक तरफ प्यूरीन होता है तो दूसरी तरफ पायरिमिडीन होता है। आपको पता है इधर प्यूरीन है तो इधर क्या होगा? पायरिमिडीन। प्यूरीन अगेन 3 टाइप्स के हो सकते हैं, सॉरी प्यूरीन्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं? एडेनिन एंड ग्वानिन। और ऐसे ही पायरिमिडीन 3 तरह के होते हैं, यूरेसिल, साइटोसिन एंड थाइमिन। तो अगर एक तरफ A है, अगर यहाँ पे मैं 2 न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स बना दूं DNA के, तो अगर इधर प्यूरीन है A और शारगाफ रूल कहता है इसके सामने डबल स्ट्रैंडेड क्या बॉन्ड से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच्ड होगा G। ओ सॉरी, आई एम सो सॉरी, अगर इसके सामने है A तो A के साथ अटैच्ड होगा एक पायरिमिडीन विच इज T, A के सामने T। अगर इधर है C तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड होगा G, ठीक है। तो हमेशा यही होगा, यूरेसिल इज नॉट प्रेजेंट इन DNA, तो DNA के पास 2 प्यूरीन है और 2 ही पायरिमिडीन है, राइट। तो एडेनिन विल कंबाइन विद ग्वानिन, adenine will combine with thymine by a double hydrogen bond that you can see here. ऐसे ही cytosine will combine with guanine with triple hydrogen bond. तो ये हो गया हमारा DNA का बेसिक स्ट्रक्चर जो हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं एक बार। नाउ वी विल कंटिन्यू अहेड इन दिस चैप्टर कि ये जो DNA है ये आपको पता है पैक्ड कैसे है। हमारे एक सेल की कितनी कम डायमीटर होती है, कितनी कम डायमेंशंस है, उसके अंदर उससे भी छोटा होता है उसका न्यूक्लियस, और उस न्यूक्लियस के अंदर पैक्ड होते हैं क्रोमोसोम्स, और ये क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? DNA से, ठीक है। तो रिलेशन क्रोमोसोम्स और DNA में ऐसा हो गया, फॉर एग्जांपल एक टी शर्ट है तो वो टी शर्ट किस चीज से मिलके बनी है? वो कॉटन से बनी है या स्पेंडेक्स से बनी है या फिर किसी सिंथेटिक फाइबर से बनी है। तो वो सिंथेटिक फाइबर या वो कॉटन फाइबर्स वो क्या हो गया? DNA। और जो टी शर्ट बन के तैयार हुई वो क्या हो गया? क्रोमोसोम। ओके, तो अब इसको समझते हैं हम पैक्ड कैसे होता है। क्या होता है? DNA बहुत एक्सटेंसिवली पैक्ड होता है। क्या आपको पता है हमारा न्यूक्लियस का साइज जो है 10 टू द पावर -4 मीटर है, ठीक है। और इसके अंदर जो DNA है, अप्रोक्सीमेटली DNA की जो लेंथ है हमारे पूरे
हमारे जीनोम में वो है अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर। कैन यू इमेजिन इतना पैक होके आएगा कैसे इसके अंदर? सो लेट्स स्टार्ट। हाउ डज इट पैक एंड मूव इनटू द न्यूक्लियस? तो क्या होगा, एक न्यूक्लियोसोम होता है। जैसे आपने देखा है कि वो बच्चे खेलते हैं, एक पत्थर के ऊपर एक धागा टाई कर देते हैं और उसे फेंकते हैं, लंगड़ बना देते हैं, इफ यू आर अवेयर ऑफ दैट। तो ऐसे ही क्या होगा, एक सर्कुलर सा बॉल है, ठीक है, ये बॉल को हम कहते हैं न्यूक्लियोसोम। ये न्यूक्लियोसोम 8 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ये 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 H2AB, ए 2 मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं, 2 H2B, H3 के 2 और H4। ये सारे प्रोटीन्स, ये 8 प्रोटीन्स मिलके क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोसोम। अब इस न्यूक्लियोसोम पे रैपिंग होती है डीएनए की, राइट। तो ये डीएनए पैक होता है। यहाँ एक दूसरा न्यूक्लियोसोम है, ऐसे ही इस पे भी क्या होता है, डीएनए पैक्ड होता है 1/3/4 टाइम्स, राइट। तो मतलब ऑलमोस्ट 2 राउंड्स कह सकते हो, या 1.75 राउंड्स इसमें ये लेता है। और इन दोनों के बीच में लिंकर प्रोटीन होता है, H1 लिंकर प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी एक हिस्टोन प्रोटीन होता है। तो इसका मतलब हमारा डीएनए क्या कर रहा है, न्यूक्लियोसोम पे रैप हो रहा है, और ये जो इंडिविजुअल न्यूक्लियोसोम्स हैं, दे आर कनेक्टेड टुगेदर, राइट। नाउ आई वांट यू टू सी दिस स्ट्रक्चर। ऐसे जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये एक न्यूक्लियोसोम, और उसके चारों तरफ ये देख रहे हो न्यूक्लियोसोम पे डीएनए रैप्ड है, और ये रैप होता होता ऐसे ये डीएनए सोलेनॉइड बना लेता है। जैसे स्प्रिंग होता है ना रेनॉल्ड्स के पेन में, या बहुत सारे ऐसे रिफिल पेन्स में स्प्रिंग होता है ना अंदर, तो ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स वाला ये बीडेड स्ट्रक्चर होता है, जो क्या बना लेता है, एक सोलेनॉइड की शेप। और ये सोलेनॉइड फर्दर और कंडेंस होता जाता है और एक फाइबर बना लेता है, और ये किसमें प्रेजेंट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम्स में। You can see this in your NCERT also and in the previous image also. अब ये जो क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन है कितने टाइप का? ये क्रोमैटिन होता है 2 तरीके का, एक है यूक्रोमैटिन और एक है हेट्रोक्रोमैटिन। अब ये यूक्रोमैटिन रीजन क्या है, आपको पता है हमारा जितना भी डीएनए है उसका सिर्फ 1 to 2% ही होता है जो प्रोटीन्स बनाता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी का सारा डीएनए जंक डीएनए है। तो जंक डीएनए मतलब वो कभी प्रोटीन नहीं बनेगा उसका, तो वो एज इट इज पड़ा रहता है पैक्ड। तो उसका ना रेप्लिकेशन तो हो जाएगा, उसका ना ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि ना उससे आरएनए बनता है ना प्रोटीन बनता है। तो इस प्रोटीन, इस क्रोमोसोम के रीजन को हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। अब क्योंकि ये डेंसली पैक्ड है तो इस पे स्टेन डालोगे तो डार्क कलर आएगा। अब यूक्रोमैटिन को अगर आप देखें तो ये लूजली पैक्ड है, लूजली पैक्ड बिकॉज इट हैज टू अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, है ना, प्रोटीन बनाने हैं इसको, तो यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स आएंगे, काम करेंगे, तो इसीलिए दिस रीजन इज लूजली पैक्ड, इसीलिए इसे हम कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन, राइट। मूविंग अहेड, नाउ डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है। आई वांट यू ऑल टू स्टडी कि डिस्कवरी किसने की थी डीएनए के स्ट्रक्चर की, आपको पता होगा सबको। यस, डिस्कवरी, हाँ अभी मैंने आपको बताया था, मिशर ने डिस्कवर किया था कि न्यूक्लिन जो एक एसिडिक स्ट्रक्चर था, वो एक्चुअली एक न्यूक्लिन नाम का स्ट्रक्चर उसने देखा जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसके बाद उसकी सर्च स्टार्ट हो गई कि ये क्या, ये जेनेटिक मटेरियल है, क्या ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। उस समय पे 3 कैंडिडेट्स पाए गए जो जेनेटिक मटेरियल के लिए सूटेबल थे। एक डीएनए, कुछ लोग कहते थे आरएनए भी हो सकता है, और प्रोटीन के ऊपर भी पूरा डाउट था। So in the next slides we will study about the experiments that were conducted to see कि हमारा genetic material actually है।
तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में ग्रिफिथ ने माइस लिया और माइस को स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के साथ इंजेक्ट कर दिया। इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की दो स्ट्रेन होती हैं, स्मूथ एंड रफ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन जो होती है वो बहुत वायरुलेंट होती है, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो वो स्मूथ होता है, और जो रफ स्ट्रेन होती है वो सुपरफिशियली रफ देखने को मिलती है और वो लेस वायरुलेंट होती है या नॉन वायरुलेंट होती है, जिसकी वजह से डेथ नहीं होती। तो क्या किया उन्होंने, जैसे ही एक माइस लिया, माइस के अंदर ये इंसर्ट कर दिया रफ स्ट्रेन, तो माइस क्या करा, क्योंकि रफ स्ट्रेन नॉन वायरुलेंट है तो माइस सरवाइव कर जाता है। देन ही टुक स्मूथ स्ट्रेन जो वायरुलेंट थी, जैसे ही माइस में डाली माइस मर गया, ठीक है। एंड देन in another experiment what did he do, he took heat killed smooth strain। तो heat killed है तो मतलब वो बैक्टीरिया मर चुका है, और जैसे ही वो माइस के अंदर डाला माइस अगेन सर्वाइव्ड। तो ये सर्वाइव कर दिया इस माइस ने, इसका मतलब कि कोई भी अभी वायरुलेंट स्ट्रेन नहीं है। लेकिन टू एवरीबॉडीज सरप्राइज उन्होंने क्या किया, इन द फोर्थ एक्सपेरिमेंट व्हाट डिड ही डू, इन द फोर्थ एक्सपेरिमेंट ही टुक रफ स्ट्रेन, उसको ऐड कर दिया स्मूथ स्ट्रेन के साथ। जो हीट किल स्मूथ स्ट्रेन था जो थर्ड एक्सपेरिमेंट में यूज हुआ था, उसके साथ रफ स्ट्रेन को डाल दिया। पर देखो इंडिविजुअली रफ स्ट्रेन से माइस जिंदा रहते हैं, इंडिविजुअली हीट किल से भी माइस जिंदा रहते हैं, पर ये दोनों को जब मिक्स करा गया तो माइस मर गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया कि अब क्या हुआ कि ऐसा कुछ था जो स्मूथ स्ट्रेन से निकल के रफ स्ट्रेन में गया। इसका मतलब कुछ था जो स्मूथ स्ट्रेन से निकल के रफ में चला गया और उसने उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसे कन्वर्ट कर दिया वायरुलेंट स्ट्रेन में। तो अब उसकी डिस्कवरी चलेगी आगे कि क्या ये जो निकलने वाला ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है, क्या वो जेनेटिक मटेरियल है, ऑफ कोर्स। तो वो क्या है, क्या वो डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। ओके, so we will do with the next experiment, which is next slide. So next experiment was conducted by Avery, मैकलियोड एंड मैककार्टी as we discussed earlier। तो अब तीन कैंडिडेट्स थे, मैंने आपको बताया, जैसे कि प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। इन तीनों में से कोई भी एक जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसलेट कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है स्मूथ स्ट्रेन को रफ स्ट्रेन को कन्वर्ट कर देगा ताकि वो भी वायरुलेंट हो जाए, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो कन्वर्जन वाला था, जब ये मिक्सचर लिया था हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन और रफ स्ट्रेन का, उसको 3 टेस्ट ट्यूब्स में डाला, ठीक है। ही टुक 3 टेस्ट ट्यूब्स। एक में क्या डाल दिया, डीएनएस, ठीक है। टू 1 ही एडेड डीएनएस, ठीक है। लेट मी राइट इट क्लियरली। ये एक ये और एक तीसरा, तो यहाँ पर डाला डीएनएज। डीएनएज वो एंजाइम है जो डीएनए को मार देगा, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं, ठीक है। इसमें डाला उन्होंने आरएनएज। आरएनएज ने क्या करा, आरएनए खत्म कर दिया। आरएनए खत्म कर दिया फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, यानी कि माइस डाइड। इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट दे टुक प्रोटीएज, यानी कि इस टेस्ट ट्यूब में सारा प्रोटीन डिग्रेड हो जाएगा, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो इसका मतलब डीएनए को डालने से, डीएनए को ब्रेक डाउन करने से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब डीएनए, वेरी क्लियर दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। दिस वाज फर्दर कंफर्म्ड बाय अनदर एक्सपेरिमेंट डन बाय हर्शे एंड चेज। हर्शे एंड चेज ने, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन, ये एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चंस। हर्शे चेज के 3 स्टेप्स बता दो, हर्शे चेज ने क्या कंक्लूड किया था, क्या एक्सपेरिमेंट किया था। तो हर्शे चेज ने क्या किया, एक बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक ऐसा वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। तो इन्होंने 2 तरह के बैक्टीरियोफेज लिए। बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जिसके पास 2 ही कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है प्रोटीन और एक उसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए,
अब हम कह रहे हैं उसे जेनेटिक मटेरियल, बट बाय दैट टाइम इट वाज नॉट नोन। तो एक वायरस के अंदर दो ही मटेरियल हैं, एक उसका प्रोटीन फेज, प्रोटीन कोट, और उसके अंदर रहने वाला डीएनए। ठीक है, तो उन्होंने दो एक्सपेरिमेंटल सेटअप किए। एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप नंबर 1 में उन्होंने क्या किया, यहाँ जो प्रोटीन कोट है, ठीक है, ये जो प्रोटीन कोट है इसको रेडियो एक्टिव बना दिया, यहाँ पे रेडियो एक्टिव लेबलिंग कर दी सल्फर की। ठीक है, इन अनदर एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में ये जो हमारा ये बैक्टीरियोफाज था, ठीक है, इसके डीएनए को रेडियो लेबल कर दिया, इसके फास्फोरस लेबलिंग कर दी। तो फास्फोरस कहाँ प्रेजेंट है, डीएनए में प्रेजेंट है। तो अब उन्होंने दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें एक तरफ रेडियो लेबल्ड प्रोटीन से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, दूसरी तरफ रेडियो लेबल्ड डीएनए से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ये एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इन्फेक्शन कराया, यानी इन्फेक्शन स्टेज में क्या होगा, ये वायरस अटैच हो जाएगा अपने आप बैक्टीरिया के ऊपर। उसके बाद करी ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है यहाँ मिक्स करना। ब्लेंडिंग का मतलब जब आप इसे चर्न करेंगे, ठीक है, तो चर्न करोगे तो जो एक्स्ट्रा सरफेस पे मटेरियल है, ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो तो अंदर चला गया होगा बैक्टीरिया के, जो सुपरफिशियली जो कुछ भी सब्सटेंसेस अटैच्ड है वो रिमूव हो जाएंगी। सो ब्लेंडिंग का इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग नहीं होता, रादर ब्लेंडिंग का मतलब होता है वो चर्निंग कर देना, ताकि एजिटेशन कर देना, जिससे कि वायरल कोट जो है, जो कुछ भी सरफेस पे रह गया है वो हट जाए। ठीक है, एंड थर्ड स्टेप इज सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज कर देंगे ताकि जो कुछ भी मटेरियल हमने सरफेस से रिमूव किया है वो नीचे सेटल डाउन कर जाए। तो जैसे ही ये सेटल डाउन हो गया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रेडियो एक्टिविटी थी, दिस वाज फाउंड, इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिली। क्यों? क्योंकि हमने रेडियो एक्टिव क्या बनाया था, प्रोटीन, और प्रोटीन इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, तो यहाँ रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। वेयर एज इन केस ऑफ रेडियो लेबल्ड फास्फोरस जो डीएनए बनाता है, रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड। ये हमने ग्रीन कलर से रेडियो एक्टिविटी बनाई थी, रेडियो एक्टिविटी वाज फाउंड इनसाइड द बैक्टीरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस था वो ही जेनेटिक मटेरियल है, वो ही बैक्टीरिया के अंदर चला गया है। दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल अगेन। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जेनेटिक मटेरियल की, जैसे हर्षचेज ने बताया कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, पर मैंने आपको बताया था कुछ कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे टोबैको मोज़ैक वायरस, बैक्टीरियोफाज। अब हमने कोरोना वायरस रिसेंटली पढ़ा था, तो ये जो कोरोना वायरस था उसका जीनोम भी क्या था, आरएनए का जीनोम था। और जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए, उसकी एबिलिटी होनी चाहिए अपने आप को रेप्लिकेट करने की, म्यूटेशंस का स्कोप कम होना चाहिए, हो लेकिन कम हो, एवोल्यूशन करना चाहिए, और मेंडेलियन लॉज को फॉलो करना चाहिए उसको, अगर एक जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए कितने तरह का होता है, डीएनए इज अगेन ऑफ 3 टाइप्स होता है, 5 टाइप्स का है, ए बी सी जी एक और फॉर्म होती है, लेकिन यहाँ भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है ए फॉर्म, बी फॉर्म एंड जेड फॉर्म। तो यहाँ देख रहे हैं आप ए फॉर्म और बी फॉर्म, यहाँ पे किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, बी फॉर्म में आप देख रहे हैं कैसे मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, उल्टा। ठीक है, एक लेफ्ट हैंडेड है तो एक राइट हैंडेड है। देन यू हैव जेड डीएनए। ओके, नाउ कमिंग टू आरएनए। ठीक है, आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है किसी किसी वायरस में। डिफरेंस आरएनए और डीएनए में क्या होता है, खाली आपको पता है आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड whereas डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, राइट, और बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं इसके। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और अगर हम इसके केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डीएनए के अंदर 4 नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, एडेनिन जो पेयर करता है थाइमिन के साथ, साइटोसिन जो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। दिस इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डीएनए, राइट। बट अगर मैं आरएनए की बात करूंगी तो आरएनए के अंदर इंस्टेड ऑफ टी यू प्रेजेंट होता है।
सो ए, यू, सी और जी, ये चारों चीजें आरएनए के अंदर प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और आरएनए 3 तरीके का होता है, 3 फॉर्म्स होती हैं आरएनए की, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। आरआरएनए क्या होता है, पहले वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे आपको पता है एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोलस है ये किसका बना होता है, राइबोसोमल प्रोटीन का, आरआरएनए से मिलके बना होता है। ठीक है, अगर आपको पता चले कि ये डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल अंदर ही रहता है न्यूक्लियस के, कभी बाहर नहीं आता, तो इसका मैसेज लेके साइटोप्लाज्म में कौन आता है, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। ठीक है, और हम आगे जाके पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, एक और स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ टाइप स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं टीआरएनए। ठीक है, तो 3 तरह के आरएनए हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए। ओके, अब डिफरेंस हमने अभी पढ़ लिया था कि एक डबल स्ट्रैंडेड है डीएनए और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, एक में डीऑक्सी राइबोस शुगर होती है और एक में राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है। ठीक है, आरएनए पे सेकंड पोजीशन पे OH ग्रुप होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोस में OH ग्रुप नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए में, डीएनए में उसकी जगह क्या प्रेजेंट होता है, थाइमिन। ओके, so central dogma. So what is the central dogma? Central dogma is the flow of information. हमारे यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, पहले होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, देयर इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये न्यूक्लियस से बाहर नहीं निकल सकता, ये एक जगह ही रहता है, तो ये अपना मैसेज किस में भेज देता है, ये बनाता है एमआरएनए, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, M should be small, mRNA, और उस mRNA से बनते हैं प्रोटीन। फॉर एग्जाम्पल एक इंसुलिन की जीन है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो क्या बनाती है, इंसुलिन का प्रोटीन। तो अगर ये इंसुलिन की जीन है, ठीक है, ये इंसुलिन की जीन है, ठीक है, सपोज दिस इज द जीन फॉर इंसुलिन, तो जीन डीएनए होगा, उससे पहले बनेगा mRNA और mRNA से बनेगा ये प्रोटीन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ, ये हमेशा फॉलो होता है, लेकिन कुछ वायरसेस में जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ये सेंट्रल डॉगमा फॉलो नहीं होता, कि ये सेंट्रल डॉगमा कह रहा है डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन, लेकिन उन वायरसेस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए से बनता है पहले डीएनए फिर आरएनए बनता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेंट्रल डॉगमा इज यूनिवर्सल, लेकिन कहाँ फॉलो नहीं होता, ये उन वायरसेस के केस में नहीं फॉलो होता जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए। ओके, नाउ these are some of the important board questions। जैसे एक बोर्ड क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पर अब क्वेश्चंस क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, कभी आपको डायरेक्टली पूरा इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको कुछ दिया होगा और उसके बारे में, इस हर्शी चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में, और आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। Then you have functions of histone proteins. Now you know histone proteins make up the nucleosomes, जिसके ऊपर क्या wrapped होता है, DNA। Moving ahead, tRNA का कोडॉन, ये हम आगे पढ़ेंगे जाके। Which base is found in RNA but not in DNA? ठीक है, तो किस में है वो, यूरेसिल is present in RNA but not in DNA. The number of hydrogen bonds is in A and T is double bond। ठीक है, और आपको पता है C और G के बीच में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, मूविंग अहेड, हाउ मेनी कोडॉन्स आर प्रेजेंट, कोडॉन्स होते हैं 61 और 3 डीजेनरेट, 3 होते हैं हमारे स्टॉप कोडॉन। ओके, सेमी कंजर्वेटिव नेचर किसने प्रूव किया था, मीजल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट था। सो क्विक रिविजन टिप्स, माइंड मैप्स आपको बनाने हैं फ्लो चार्ट से, अगर आप पढ़ेंगे तो इजीली क्लैरिटी मिलेगी आपको, डायग्राम प्रैक्टिस करने हैं और केस बेस्ड क्वेश्चंस। प्लीज like and subscribe the channel and follow and keep commenting for any doubt and anything that you want me to make video on. Thank you.